Good morning, students. Today we are going to start our chapter 2 of class 8th science. The name of the chapter is Microorganisms, Friend or Foe. So first of all, let us see what are microorganisms. Living organisms around us which cannot be seen by naked eyes is called microorganism or microbes. We need a microscope to see these microbes. So वो living organisms जो हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते, which are not visible by our eyes, जो हमारे around बहुत से tiny organisms हैं जो हम अपनी eye से नहीं देख सकते, that organisms, tiny organisms are called microorganisms. These can only be visible through microscope. Next are the types of microorganisms. Now there are different types of microorganisms. First is bacteria, second is algae, third is protozoa, fourth is fungi, and fifth is virus. Now first is bacteria. Mostly bacteria are single-celled organisms. They lived together in colonies of millions. ये हमेशा millions में इकट्ठे रहते हैं bacteria. There are three types of bacteria. First is rod-shaped bacteria. Second is spiral bacteria. Third is spherical shaped bacteria. Next is algae. Algae are simple plant-like structure organisms. ये एक plant-like structure होता है इनका. These are aquatic in nature, means ये ज़्यादातर water में ही पाए जाते हैं. It can be unicellular or multicellular. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी, मीन्स they are single cell also and they are multicellular also. For example, seaweed, diatoms, etc. Next is protozoa. Protozoa are unicellular microorganisms. These are made up of only single cell. These are also aquatic in nature. For example, amoeba, paramecium. Now let us see the example of protozoa. This is a picture of amoeba. Next is fungi. Fungi are plant-like organisms that do not contain chlorophyll. As we know that plants have green pigment and they are having chlorophyll which they are using for preparing food. Fungi is also a plant-like organism but it do not contain chlorophyll. It can be multicellular or unicellular. For example, yeast, rhizopus, etc. So these are the types of fungi. First is bread mold. If you have seen sometimes that when you are keeping the bread for so long time, for more than a week, then there are black spots on the bread. That black spots is fungi, which is called, this is bread mold, which fungi you can see on this bread. Next is penicillium. Next is viruses. So fifth type of bacteria is viruses. These viruses are smaller than any other known cell. It can reproduce only inside living bodies, means they need a host. ये अपने आप प्रोड्यूस नहीं करते, इनको रिप्रोड्यूस होने के लिए एक और लिविंग बॉडी चाहिए, तो इनको एक होस्ट चाहिए. ये किसी दूसरे की बॉडी पे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं ये किसी और की बॉडी पे. So it is a border line between a living and non-living thing. So types of viruses. First is HIV virus. This is a picture of HIV virus. Next is hepatitis B. This is hepatitis B virus, and this is a coronavirus. Next are, now some of the microorganisms are friendly. As the name of the chapter is microorganisms, friend or foe. कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड का भी काम करते हैं और हमारे लिए दुश्मन का भी काम करते हैं, एनिमी का भी काम करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं? फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. They are also used in cleaning up of the environment by degrading dead and decay substances. They are used in increasing soil fertility by fixing nitrogen. So first use is how these microorganisms are useful for us. First, we can use microorganisms for making of curd, cheese and bread. So Bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. So there is a bacteria in the milk that is called lactobacillus which
हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो मिल्क से कर्ड में बनने में बैक्टीरिया हेल्प करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। मिल्क में ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक से ज्यादा बन जाते हैं, मिलियंस में बन जाते हैं, देन दे कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया कन्वर्ट द नेचुरल शुगर्स इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो मिल्क में शुगर होता है they convert that sugar into lactic acid. So different flavor of milk is due to the different types of bacteria used. जो मिल्क के different flavors हैं वो किसकी वजह से होते हैं, different types of bacteria जो हम use करते हैं. Next we can use yeast. Yeast microorganisms which we are using. Yeast क्या होता है, yeast is used in making cakes and bread. Bakers add yeast to dough to increase its volume by filling the gap by bubbles of carbon dioxide produced by yeast. आपने देखा होगा केक होते हैं, जो ब्रेड होते हैं, सो फ्लफी, कितने फ्लफी होते हैं, और उनके बीच में आपने देखा होगा बबल्स हैं। तो बबल्स उसको फ्लफी बनाने के लिए जो बेकर्स हैं वो क्या करते हैं, दे ऐड यीस्ट विच इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड। नेक्स्ट, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब पहले तो हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ यूज करते हैं, चीज बनाने के लिए, कर्ड के लिए, केक्स के लिए। नाउ कमर्शियली हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, शुगर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में, और किसकी हेल्प से, यीस्ट की हेल्प से। तो यीस्ट की हेल्प से जब आप शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप मेडिसिन में कैसे यूज कर सकते हो। Antibiotics. What are antibiotics? Antibiotics are the medicines that are used to treat infections caused by other bacteria and certain parasites. Antibiotics are produced by the help of other bacteria. So antibiotics क्या होते हैं, antibiotics एक तरह की मेडिसिन है। मेडिसिन मीन्स एक तरह के ये बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी बॉडी में जो डिसीजेस कॉज करने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। सो एंटीबायोटिक्स, तो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स एक यूजफुल बैक्टीरिया जिसको हम हमारे बॉडी में जो डिसीजेज हार्मफुल बैक्टीरिया उसको किल करने के लिए हम एक और बैक्टीरिया यूज करते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया, दैट आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपने सुना होगा, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी हमें होता है, देन डॉक्टर्स प्रेफर एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स इज टाइप ऑफ मेडिसिन बैक्टीरिया विच किल द हार्मफुल बैक्टीरियाज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल penicillin, tetracycline, streptomycin, all these are the examples of antibiotics. Next, microorganisms also help in increasing soil fertility. ये हमारी soil को fertile भी बनाते हैं, कैसे? Bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere. जो बैक्टीरिया होता है और जो blue-green algae हैं वो क्या करते हैं, एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको पकड़ के रखते हैं, सॉइल में फिक्स करके रखते हैं। Then they enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. जब वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, सॉइल जो है वो फर्टाइल बनती है। These microbes are called biological nitrogen fixers. जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं सॉइल में और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन fixers. Next, microorganisms are also used in cleaning the environment. How? Microorganisms convert dead and decaying part of plants and animals into manures. जो microorganisms हैं वो जो dead plants या animals होते हैं उनको क्या करते हैं, convert कर देते हैं किसमें, manure में। manure जो खाद आप यूज करते हो। Then it decomposes organic waste into simple substances. ये organic waste को simple substances में decompose करते हैं। It degrades the harmful substance and clean ups the environment. जो हमारे environment में कोई भी harmful substance है उसको degrade करते हैं, उसको खत्म करते हैं, and so it cleans up the environment. Next are the harmful microorganisms.
Earlier we have discussed all the friendly microorganisms. Now the next part is harmful microorganisms. Now some of the microorganisms are harmful to us also. How? Some microorganisms are not good for us, that are called harmful microorganisms. Disease causing microorganisms in humans, plants and animals are called pathogens. तो जो harmful microorganisms हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में diseases cause करते हैं. वो organisms जो humans में, plants में या animals में diseases cause करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? Pathogens. So first of all, disease causing microorganisms in humans. तो humans में microorganism कैसे diseases cause करते हैं? Pathogens are present everywhere. जो pathogens है means जो microorganisms जो diseases cause करते हैं वो हर जगह present है. They are present everywhere. Transfer to our body through air, water, food or by direct contact with infected body. और ये एक body से दूसरी body में transfer होते हैं by air, water या food या फिर by direct contact with the infected body. There are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes. अब कुछ ऐसे insects और animals भी होते हैं जिनकी बॉडी के साथ, जिनकी स्किन के साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक हो जाते हैं और ये ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. सो दीज आर कॉल्ड द कैरियर्स. सो सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स आर आल्सो एक्ट एज कैरियर्स फॉर दिस microorganisms. So disease that are transferred from unhealthy person to healthy person are called communicable diseases. So जो diseases एक unhealthy person से healthy person में transfer होते हैं, that diseases are called communicable diseases. Now next is diseases in humans. Humans में कौन से diseases होते हैं? जैसे कि malaria. First is malaria. It is caused by the female Anopheles mosquito that act as a carrier of malaria. एक फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है जो कि क्या है? कैरियर है मलेरिया का, जो मलेरिया को कैरी करता है अपने साथ एंड इट ट्रांसफर मलेरिया इन डिफरेंट पीपल्स. नेक्स्ट इज डेंगू. डेंगू इज caused by female AIDS mosquito which act as a carrier of dengue virus. So this mosquito spreads the dengue virus. So this is a carrier of dengue. Next is food poisoning. Now what is food poisoning? Is there any relation with food poisoning and microorganisms? See how it occurs due to contaminated food products. Food poisoning क्या होती है? Contaminated means जब आपके food products खराब हो जाते हैं. Microorganisms that grow on food product sometimes produce toxic elements. जो आपके, अगर आपका कोई फूड है बहुत पुराना हो चुका है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड आपने देखा था, ब्रेड मोल्ड 1 वीक से ज़्यादा ब्रेड बाहर रखोगे रूम टेम्परेचर में तो अब क्या होगा? देन देयर विल बी अ ब्लैक सब्सटेंस, उसके ऊपर फंजाई जो है वो बननी शुरू हो जाएगी. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे फूड के ऊपर ग्रो हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? टॉक्सिक एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं. सीरियस इलनेस और इवन डेथ में कॉज ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से सीरियस इलनेस हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है. सो व्हाट आर द कॉमन ह्यूमन डिसीजेस दैट आर कॉज्ड? सो दीज आर द कॉमन ह्यूमन डिसीजेज जो बैक्टीरिया वायरसेस से प्रोड्यूस होते हैं. फर्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. और ये ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसमिशन थ्रू एयर, एयर से ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे. सेकेंड इज मीजलेस, इट इज कॉज्ड बाय वायरस जो कि एयर से ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट इज कोविड-19. Nowadays you are hearing a lot about COVID-19 that its mode of transmission by air, by contact, कि एक दूसरे के साथ contact में आएंगे, then it will spread, air के through spread हो रहा है. So these are the viruses, these are the diseases which are caused by the bacteria and virus. So what are the preventive measures? हमें कैसे इन diseases से बच सकते हैं? So keep the patient in complete isolation. Nowadays you are hearing a lot about COVID-19 virus in news channels that all are saying whoever person is suffering from this COVID-19, so this disease, that person is kept in isolation, that person is kept in complete isolation. So this is the preventive measures to take rid of these human diseases. Next is chickenpox, polio, both are caused by virus. चिकन पॉक्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कैसे होता है ये? बाय एयर या फिर बाय कांटेक्ट. और पोलियो कैसे होता है? बाय एयर या बाय
वाटर। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीजेस को? कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। पर्सन को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे और उसकी बिलोंगिंग्स, कुछ भी कोई भी चीज़ है उसको बिल्कुल हेल्दी पर्सन से बिल्कुल दूर रखना। एंड वैक्सीनेशन आर ऑल्सो गिवन फॉर दिस चिकन पॉक्स एंड पोलियो। नेक्स्ट इज कॉलरा। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलरा एक डिसीज है जो कि बैक्टीरिया से होता है और इसके कैरियर्स क्या है, कैसे ये होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर और बाय फूड। सो प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? वी शुड मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। नेक्स्ट इज टाइफाइड। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टाइफाइड बैक्टीरिया से कॉज होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। इन दिस केस वी शुड कंज्यूम प्रॉपरली गुड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन वी कैन ऑल्सो यूज फॉर टाइफाइड। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू वाटर। सो ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वी शुड रिसीव vaccination also. Last is malaria. It is caused by protozoa and its mode of transmission is mosquito, as we have already seen earlier in the protozoa that malaria is caused by female mosquito. So for this we should use mosquito net and repellents. So these were some of the common human diseases which are caused by bacteria and virus. So these are the preventive measures. Next is diseases in human and animals. ह्यूमन और एनिमल्स में कैसे डिसीजेज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से? फर्स्ट इज एंथ्रैक्स. इट इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. ये एक ऐसा एंथ्रैक्स एक ऐसा डिसीज है जो कि बैक्टीरियम से कॉज होता है ह्यूमंस में और कैटल्स में. नेक्स्ट इज फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस. नाउ नेक्स्ट इज डिसीजेज इन प्लांट्स. अब पहले तो हमने बात करी है डिसीजेज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. नाउ डिसीजेज इन प्लांट्स. क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में भी डिसीजेज कॉज करते हैं? यस. डिसीज इन प्लांट्स रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. तो प्लांट्स को अगर डिसीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? द क्रॉप्स की जो क्वालिटी है दैट विल बिकम पुअर. सो दीज आर द डिसीजेज इन द प्लांट्स. फर्स्ट इज citrus canker which is caused by bacteria. Second disease of plant is rusting of wheat which is caused by fungi. So next are the chemical methods. What are the chemical methods? Now chemical method means how can we prevent our food from these harmful microorganisms. हम अपने food को इन microorganisms से कैसे बचा सकते हैं? So different ways to preserve food from harmful microorganisms. Let us see the different methods. First is preservation by common salt. आप अपने food को long time के लिए preserve कर सकते हो by using common salt. Salt के साथ कैसे? Salt is used to preserve meat and fish for ages. Meat और fish को long time के लिए preserve करने के लिए you are using salt. Meat and fish are covered to check the growth of bacteria. It is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. तो कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं जैसे कि आंवला के लिए या रॉ मैंगोज के लिए. पिकल्स आपने देखा होगा उसमें सॉल्ट होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं. सो देयर वी आर यूजिंग कॉमन सॉल्ट. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. हम अपने फूड को और कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? बाय शुगर ऑल्सो. जैसे कि जैम्स, जेली एंड स्क्वैश आर यूज टू प्रिजर्व बाय शुगर. जो जैम्स हैं, जेली हैं, उसमें हम शुगर ऐड करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम, जैम है जैसे जैम यू आर यूजिंग, जैम हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स शुगर. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. शुगर क्या करता है? मॉइस्चर बनने को रोकता है. तो बैक्टीरिया कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर आपके उसमें हीट और मॉइस्चर है तभी बैक्टीरिया प्रोड्यूस होएगा. अब शुगर क्या काम करेगा? वो मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बंद कर देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने ही नहीं देता. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. हम ऑयल और विनेगर भी यूज करते हैं. ऑयल एंड विनेगर क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं उनको ये रोकते हैं. ऑयल और विनेगर उनको प्रोड्यूस नहीं होने देते. इट इज यूज टू प्रिजर्व फिश, फ्रूट, पिकल्स एंड मीट. तो हम ऑयल और विनेगर यूज करते हैं फिश प्रिजर्व करने के लिए, फ्रूट्स प्रिजर्व करने के लिए, पिकल्स में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. ये भी एक मेथड है हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए. व्हाट इज दिस?
बोथ हायर एंड लोअर टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होते, अगर बहुत कम लो टेम्परेचर होगा तो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं होते। सो बोथ हायर एंड लोअर टेम्परेचर प्रिवेंट्स, रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। सो बाय बॉइलिंग और बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर किल्स द माइक्रोब्स। तो अगर हम बॉयल कर रहे हो, आप वाटर बॉयल करते हो, क्यों बॉयल करते हो? ताकि उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाए। या फिर आप कोई भी फूड आइटम हो, आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हो फॉर कीपिंग स्टे फॉर लॉन्ग डेज, क्यों? ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाए। नेक्स्ट इज पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन भी एक मेथड है। इट इज अ मेथड हीटिंग ऑफ फूड टू हाई टेम्परेचर एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। तो ये क्या है? पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप फूड को एकदम से हाई टेम्परेचर पे पहले हीट करते हो, उसके बाद सडनली उसको चिल्ड करके स्टोर कर देते हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। ये क्यों करते हैं हम? इट इज डन टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी ग्रोथ को। लाइक मिल्क, आपने सुना होगा पेस्चराइज्ड मिल्क, जो पैकेट्स में आते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क, वो क्या होता है? दैट आर पैक्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? हमने पढ़ा था अभी अर्लियर दैट जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स, राइबोसोबियम हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये राइबोसोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। सो with the nitrogen fixation there is nitrogen cycle. Now what is nitrogen cycle? As we know that our atmosphere has 78% of nitrogen gas. हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। That nitrogen constitutes a part of proteins, chlorophyll, nucleic acid और vitamins होते हैं उस नाइट्रोजन में। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, और ये अमाउंट 78% हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसके लिए लेट अस स्टडी नाइट्रोजन साइकिल। कैसे नाइट्रोजन साइकिल वर्क कैसे करता है क्या नाइट्रोजन साइकिल? एज वी ऑलरेडी नो दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अभी हमने पढ़ा कि 78% नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही होती है। बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो बैक्टीरिया होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं। किसमें? सॉइल में। सॉइल में फिक्स करने के बाद फ्रॉम द सॉइल नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स। अब वो जो नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो चुकी है, सॉइल में ऐड हो चुकी है, अब वो नाइट्रोजन कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं। देन एनिमल्स गेट प्रोटीन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स बाय ईटिंग देम। उसके बाद वो जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? उनको नाइट्रोजन मिलती है। कैसे मिलती है? बिकॉज दे आर ईटिंग द प्लांट्स। वो प्लांट्स ईट करते हैं, प्लांट्स में पहले से ही नाइट्रोजन है जो कि उन्होंने सॉइल से ली है। इफ एनिमल्स आर ईटिंग दैट plants, then that nitrogen is also transferred to their body. Then when animals and plants die, bacteria and fungi decomposes them and converted into nitrogenous compounds. उसके बाद जो एनिमल्स और प्लांट्स डाई होते हैं तब क्या होता है? बैक्टीरिया और फंजाई उनको डीकम्पोज करते हैं, यूजफुल मैन्योर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें से किसमें कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। So that bacteria convert that dead animals and plants into nitrogenous compounds. Some bacteria convert this nitrogenous compound into nitrogen gas. कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? इस nitrogenous compound को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस में, which ultimately goes back to atmosphere, जो कि ultimately automatically एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। So this is a nitrogen cycle. ये कंप्लीट साइकिल है। एटमॉस्फेयर से हमें एक नाइट्रोजन मिलती है, बैक्टीरिया जो है वो उनको फिक्स करते हैं सॉइल में, सॉइल से वो बैक्टीरिया प्लांट्स, सॉइल से वो जो नाइट्रोजन गैस है वो प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स से वो एनिमल्स में जाती है, फिर एनिमल से वो अगेन इट गोज बैक टू द सॉइल और इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस जो कि वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप you like this chapter. I hope you understand all the topics which I have discussed in this chapter. Thank you.
So subscribe our YouTube channel. You can also follow us on Facebook, LinkedIn or Instagram. Thank you very much.